Assalamu alaikum and very warm good morning to all. Welcome back students. Welcome back to our online classes from home. Today we are going to continue for standard 11 subject economics chapter number 6 market. Today's topic is introduction, meaning of market and characteristics of market. For this chapter this is the part 1. So concentrate here. It is very important chapter for examination. So concentrate and let's start with market chapter number 6. जैसे कि आप सब जानते हैं जो करंट ईयर है उसमें 30% सिलेबस कट हुआ है, बट ये चैप्टर ओवरऑल है, इसमें से कोई भी सिलेबस कट नहीं है. दैट्स वाई दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. नाउ वी आर गोइंग टू ऑन इंट्रोडक्शन. जनरली द प्लेस वेयर देयर इज purchase and sale of commodities and service is called a market. जनरली हमारे वर्ड में हम बोलेंगे तो ऐसी जगह जहाँ पे परचेसिंग और सेलिंग होती है उसे यहाँ पे मार्केट बोला जाता है. द कंसेप्ट रिगार्डिंग मार्केट इन इकोनॉमिक्स मोर एक्सटेंसिव देन द प्रिवेलिंग आइडिया. सो मीनिंग ऑफ मार्केट: the system through which the buyers and sellers get in contact with each other directly or indirectly for the sale or purchase of good or service is called market. Very easy definition. The system through which the buyers and sellers get in contact with each other directly or indirectly for the sale or for a purchase of goods or service is called market. जहाँ पे ऐसी जगह जहाँ पे सेलर्स और बायर्स गुड्स और सर्विस परचेस और सेल करने के लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्ट होते हैं, ऐसे प्लेस को यहाँ पे मार्केट बोला जाता है. According to Professor Samuel, market is the functional system where the buyers and sellers contact each other to decide the price and the quantity of goods or services. According to Samuel, market is a functional system where the buyers and sellers contact with each other to decide the price and the quantity of goods or service. Samuels के अकॉर्डिंग जो मार्केट है वो ऐसी सिस्टम है जहाँ बायर्स और सेलर्स एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं डिसाइड करने के लिए, प्राइस और क्वांटिटी को डिसाइड करने के लिए गुड्स और सर्विस की. तो यहाँ पे जो डेफिनेशन है वो मार्केट की वो बहुत इजी है. इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मार्केट. मार्केट किसे बोलेंगे? तो यहाँ पे मार्केट हैज़ इट्स ओन peculiar characteristics as follows. First number, numerous sellers and buyers. It is mandatory to have buyers and sellers of goods and services in a market. The purposeful exchange made through them for goods or service is the process of purchase and sales. This process allows the sellers to gain maximum profit and the buyers to gain satisfaction from the product. फर्स्ट नंबर का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, यहाँ पे ऐसी जगह जहाँ पे अनलिमिटेड सेलर्स और अनलिमिटेड बायर्स होते हैं, ऐसी जगह को मार्केट बोलते हैं. जहाँ पे पर्पसफुली जो सेलर्स है वो अपनी चीज़ें सेलिंग करने के लिए आते हैं और जो बायर्स हैं वो अपनी चीज़ें बाय करने के लिए आते हैं, और जो सेलर्स है उनको यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट में उनको गेन करने में उनको इंटरेस्ट होता है, और जो बायर्स है उनको यहाँ पे अपनी जो सेटिस्फेक्शन है, अपनी जो नीड है उसको फुलफ़िल करने की यहाँ पे इंटरेस्ट होता है. नाउ नेक्स्ट नंबर, कैरेक्टरिस्टिक्स गुड्स एंड सर्विसेज.
It is necessary that there are goods and services available according to the demand and necessity. To gain maximum profit, the producers and sellers provide the products and services in various types and forms and try to attract the buyers towards them. While for their satisfaction, the buyers tries to buy an ideal set of product and services. यहाँ पे नेसेसिटी के हिसाब से गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड होती है और जो सेलर्स हैं वो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करने के लिए वो प्रोडक्ट और सर्विस को ऐसे यहाँ पे उसको मार्केट में रखते हैं जैसे जिसकी डिमांड ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में बढ़े और इसके थ्रू जो बायर्स हैं उसकी सेटिस्फेक्शन फुलफिल हो और इसीलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ का यहाँ पे डिमांड करें. नाउ थर्ड नंबर कैरेक्टरिस्टिक्स कॉन्टैक्ट. द बायर्स एंड सेलर्स कम इन कॉन्टैक्ट वाया various means. The contact made can be either direct or indirect. Presently, the buyers and sellers come in contact via the following means. मार्केट की डेफिनेशन में ही यहाँ पे मेंशन किया है कि जो बायर्स और सेलर्स है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कांटेक्ट में आते हैं. तो कांटेक्ट डायरेक्टली हो सकता है या फिर इनडायरेक्टली हो सकता है. तो यहाँ पे नाउअडेज आप देखेंगे तो टेली शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग, तो इसका कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे दिया गया है. where the buyers themselves order the services or products through a telephone. जब हम कोई चीज़ परचेस करने के लिए टेलीफोन के थ्रू ऑर्डर देते हैं तो यहाँ पे एक मार्केटिंग सिस्टम बनती है. नाउ नेक्स्ट ऑनलाइन शॉपिंग where the buyers order the services or products which they select on websites via internet. Thus, by the means of tele-shopping and online shoppings, the buyers and sellers can come indirectly in contact. Nowadays, आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा रूबरू है. जैसे कि ऑनलाइन शॉपिंग, कोई चीज़ आपको पसंद है वो आपको सिलेक्ट करनी है और उसके बाद इंटरनेट के थ्रू आप उसे इनडायरेक्टली परचेज कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स प्राइस. At a given time, the price of the product or service must be decided in the market. The price is decided according to the demand and the factors related to its supply. The price of products and services depends on the demand made by the buyers and the ability of the producers and sellers to supply them. कोई भी चीज़ हो जो मार्केट में उसे सेलिंग के लिए रखी जाती है तब उसकी प्राइस पहले से प्री डिसाइड की जाती है. कोई चीज़ ऐसी नहीं होती कि जिसको डिसाइड किए बिना हम मार्केट में रख सकते हैं. दैट मीन्स ऐसी चीज़ें जिसकी प्राइस रखी जाती हो उसे बेचने के लिए तो उसे मार्केट का एक कैरेक्टरिस्टिक्स माना जाएगा और वो प्राइस के थ्रू जो कस्टमर्स है, कंज्यूमर्स है, वो चीज़ को परचेज करने के लिए मार्केट में आएंगे, कांटेक्ट में आएंगे. नाउ नेक्स्ट characteristics information about the market situation. It is important that the buyers and sellers have information about the current market situation so that decision related to production, distribution and purchase can be taken during the times of recession, inflation, natural and man-made calamities. जो मार्केट की सिचुएशन है वो उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे ज़रूरी है. उसके बाद ही मार्केट अवेलेबल बनता है. मीन्स यहाँ पे आप देखेंगे तो मार्केट की सिचुएशन से वाकिफ़ होना भी ज़रूरी है. जैसे कि अगर आप बिना सोचे समझे मार्केट में परचेसिंग और सेलिंग के लिए जाएंगे तो जो आपकी जो सेलर्स है उसके प्लानिंग के हिसाब से प्रॉफिट नहीं मिलेगा और जो बायर्स है उसको सेटिस्फेक्शन नहीं होगा. दैट मीन्स यहाँ पे सेलर्स और बायर्स दोनों को मार्केट की सिचुएशन का इंफॉर्मेशन होना चाहिए.
तो जिसके थ्रू वो डिसीजन ले सकते हैं, जैसे कि रिसेशन का टाइम होता है, इन्फ्लेशन का टाइम होता है, कोई नेचुरल कैलेमिटीज़ होती है या फिर मैन मेड कैलेमिटीज़ होती है, डेट टाइम पे हम मार्केट के हिसाब से कैसे सेलिंग करें, परचेसिंग करें। तो इसके थ्रू हमें जो डिसीज़न लेना है वो डिसीज़न हम ले सकते हैं। दैट मीन्स ये टाइम पे हमें मार्केट की सिचुएशन का इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी है। तो ये यहाँ पे 5 उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है। आज हमने देखा मार्केट का इंट्रोडक्शन, मीनिंग ऑफ मार्केट और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्केट। तो ये आपको नोटबुक में लिखना है। इंशाल्लाह आई विल एक्सप्लेन नेक्स्ट टॉपिक इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन concentrate on study and be safe at home. Assalamu alaikum.